But tonight we're going to look at Jesus, the purpose of his name. और आज रात को हम बात करेंगे कि यीशु नाम के पीछे मकसद क्या है. And this is the greatest Christmas present you can ever have. और ये सबसे खूबसूरत क्रिसमस का तोहफा है जो कि आपको मिल सकता है. Matthew chapter 1. और मत्ती की इंजील उसका 1 अध्याय. And I'm reading verses 18 to 21, then Sherry will read it for us, but I'm going to read it in English first. Matthew chapter 1, verses 18 to 21. This is how the birth of Jesus Christ came about. His mother Mary was pledged to be married to Joseph before they came together. She was found to be with child through the Holy Spirit. Because Joseph, her husband, was a righteous man, did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her quietly. But after he considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit. She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sin. I want to ask you a question. Is there anybody in this meeting tonight who's saved? और क्या यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं कोई आप में से ऐसा है जो कि अभी बचाया नहीं गया है? And if you're not, you can be before you leave, because this is the greatest Christmas gift of all, salvation. Come on, somebody help me और out. अगर आप बचाए नहीं गए हैं तो आज सबसे अच्छा क्रिसमस का तोहफा जो आप पा सकते हैं वो मुक्ति है और आप इसे मुफ्त में ले सकते हैं. So on this Christmas Eve, I want us to think about what it means that Jesus came to save us from our sins. और कितनी अच्छी बात है कि इस क्रिसमस ईव पर हम देख सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमें बचाने के लिए इस धरती पर आया. We could preach on the names of Jesus for the whole of 2026. और हम पूरे 2026 में खुदावंद यीशु मसीह के फरक नामों पर प्रचार कर सकते हैं. Isaiah chapter 9 gives him 5 names. और यशायाह 9 में उसके 5 नामों का जिक्र किया गया है. His name shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Wow. But tonight, I want to tell you, Jesus is the Savior of your soul. और हम देखते हैं कि हमें यशायाह 9 की 6 में लिखा गया है कि उसके फरक नाम है और वो प्राकर्मी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा गया है. Every other religion will tell you that you can find peace with God by what you do. और हर एक धर्म आपको ये बताएगा कि जो कर्म आप करते हैं उन कर्मों के साथ आपके जीवन में आपको अच्छा फल मिलेगा. But you may think about Jesus. लेकिन अगर आप यीशु मसीह के बारे में सोचें, We find peace with God because of what He did. और हम उसमें शांति पाते हैं कि उसने हमारे लिए क्या किया है. He came to save me from my sin. और वो मुझे बचाने के लिए मेरे पापों से इस दुनिया में आया. And if you know Jesus is your Savior tonight, you are the most blessed person on this planet. और अगर आज की रात्रि आप खुदावंद यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में जानते हैं तो आप एक बहुत ही आशीषित इंसान हैं. So why is His name Jesus? उसका नाम यीशु क्यों रखा गया? Because He came to save us from our sin. क्योंकि वो हमारे पापों से हमें बचाने के लिए, छुटकारा देने के लिए इस धरती पर आया. In fact, there is no other way that you can have your sins forgiven. No other way. और कोई और रास्ता है ही नहीं जिसके द्वारा आपके गुनाह, आपके पाप क्षमा हो सकते हैं. And I want us to think about that tonight. और मैं चाहता हूँ कि आज की रात आप इस पर गौर करें. Why is His name Jesus? उसका नाम यीशु क्यों रखा गया? Because He came to save you from क्योंकि your वो sin. आपको बचाने के लिए, आपके गुनाहों के लिए इस दुनिया में आया. How amazing is this? और ये कितनी खूबसूरत बात है. Have you ever thought how much God loves you? क्या आपने कभी सोचा है कि खुदा बाप आपसे कितनी मोहब्बत करता है? Because the only thing He could get in return for showing His love to you is you. और सिर्फ एक ही चीज है जिससे वो अपने प्यार का इजहार कर सकता था, वो आप हैं. That's not a very good deal, Raj. It's really not. The only thing He could get from me was me. और मेरे लिए जो कुछ वो कर सकता था वो सिर्फ मैं हूँ. For God didn't send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. और हम देखते हैं कि खुदा बाप ने अपने इकलौते बेटे को इस धरती पर इसलिए नहीं भेजा कि वो हमें आकर यहाँ पर कंडेम करे या दोष लगाए या हमें सजा दे, बल्कि उसने इसलिए भेजा था कि वो हमारे लिए एक रास्ते को तैयार कर दे. How amazing is that?
और ये कितनी खूबसूरत बात है। Jesus didn't come to condemn you. खुदावंद यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि वो आप पर दोष लगा सके, He came to save you. वो आपको बचाने के लिए इस धरती पर आया है। He came on a rescue mission और वो एक रेस्क्यू, एक बचाव कार्य के साथ आया है इस दुनिया में, because this world needs rescuing. क्योंकि आज इस दुनिया को बचाव की जरूरत है। Everywhere you look, every country you look at seems to be in total turmoil. और जिस भी देश, जिस भी जगह आप अपनी नजर को डालते हैं, वहां पर आपको सिर्फ तबाही और तबाही ही मिलेगी। They will call his name Jesus. वो उसके नाम को यीशु कहकर पुकारते हैं He will save his people from their sin. और वो उसके लोगों को गुनाहों से छुटकारा देने के लिए आया। So how do you become one of his people? That's a good question, isn't और it? ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि आप उसके लोग कैसे बन सकते हैं। The angel said, I bring you great joy, which is for all people. और स्वर्गदूत ने कहा कि मैं तेरे लिए एक सुसमाचार, एक खुशी की खबर लेकर आया हूँ जो सब लोगों के लिए है। For God so loved the world, कि खुदा बाप ने इस दुनिया से इतनी मोहब्बत करी he gave his only son. कि उसने अपने इकलौते बेटे को कुर्बान But कर whoever दिया। believes in him will not perish. जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। So does that mean everybody is saved? क्या इसका मतलब है कि हर एक इंसान जो है वो बच चुका है? No, it doesn't. इसका मतलब है नहीं। And if Jesus is the savior of the world, why is the world in such a mess? और अगर वाकई में खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया का मुक्तिदाता है, बचाव कार्य करने के लिए आया, तो दुनिया आज इतनी तबाही में क्यों है? Well, there's so much soap in the world, but there's still an awful lot of dirty people. और आज हम देखते हैं कि साबुन तो बहुत सा है इस दुनिया में, लेकिन गंदे लोग बहुत ज्यादा है कि वो उन्हें साफ नहीं कर पा रहा है। Christianity is a bit like soap. और हम देखते हैं मसीहत जो है वो एक साबुन का काम कर रही है। It's got to be personally applied to make a difference. और अगर आप गंदे हैं तो जब तक आप साबुन को उठाकर अपने ऊपर नहीं लगाते तब तक आप साफ शुद्ध नहीं हो सकते हैं। And this is one of my favorite verses in Romans chapter 10 and verse 9. और मेरी सबसे फेवरेट आयत जो कि रोमियो की पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसकी 9 आयत में है। This is all you have to do because he's done it all. आपको सिर्फ यही करना है क्योंकि उसने पहले ही आपके लिए सब कुछ कर दिया है। And I'm going to show you, I'm going to teach you on Sunday something very important, how to lead another person to Jesus Christ, because this coming year, I believe every single one of us can bring somebody else to know Jesus. और मैं चाहता हूँ कि इस आने वाले साल में आप किसी न किसी इंसान को खुदावंद यीशु मसीह के पास लेकर आए, क्योंकि ये आने वाला साल हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा साल होगा। And all you'll have to do is memorize one verse, and we're all capable of doing that, and I guarantee I'll show you how to bring another person to Jesus और मैं Christ. आपको सिखाऊंगा इस आयत को याद कर किस तरह से आप दूसरे लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के पास लेकर आ सकते हैं। इसे मुंह जुबानी रट ले, इसे याद करें। This is all you've got to do. और आपको केवल इतना ही करना है। If you confess with your mouth और यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे that Jesus is Lord, कि प्रभु जो है वो ही खुदा है, and believe in your heart और अपने दिल में विश्वास करे that God raised him from the dead, कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, you will be saved. What a निश्चय fantastic उद्धार thing. पाएगा। God's made it easy for you. और खुदा बाप ने हमारे लिए तो सब कुछ आसान कर Jesus दिया did है। it all. He died on the cross. He shed his blood. God raised him from the dead. God's done the hard bit. All you've got to do is believe. और खुदा बाप ने तो बहुत ही मुश्किल काम कर दिया अपने बेटे को भेजकर, और उसके बेटे ने आपके लिए मुमकिन कर दिया कि आप जो है इस अधिकार को पा सके कि आप दूसरे इंसानों को उसमें लेकर आ सके। Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि राह, हक और सच्चाई मैं ही हूँ, और मेरे बगैर जो है कोई भी बाप तक नहीं पहुँच सकता है। So the first question is, why is his name Jesus? और सबसे पहला सवाल ये है कि उसका नाम यीशु क्यों है? Because he came to save us. क्योंकि वो हमें बचाने के लिए आया। And the second question is, who does he save? और दूसरा सवाल है कि वो किसको बचाता है? He saves his people. और वो अपने लोगों को बचाता है। When I was 9 years of age, और जब मैं 9 साल की उम्र का था, I gave my life to Jesus. मैंने अपना जीवन खुदावंद यीशु मसीह को दे दिया। I became one of his people. मैं उसके लोगों में से एक हो गया। We've all got earthly families, every one of us. और हम में से हर एक इंसान जो है उसके पास दुनियावी जो है आज माँ बाप या परिवार है। But at 9 years of age, I became part of
his heavenly family. और 9 साल की उम्र में मैं उसके स्वर्गीय परिवार का हिस्सा बन गया। Nobody's too young. और कोई भी इतना छोटा नहीं है कि वो यीशु के पास आ सके। I got some good news. मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। As long as there's a breath in your body, nobody's too old. और जब तक आपकी सांस चल रही है तब तक आप इतने बूढ़े नहीं हैं कि आप यीशु के पास आ जाएं। Can you honestly say tonight you are one of his people? क्या Simple as वाकई that. में सच्चे दिल से आप कह सकते हैं कि आप यीशु के लोगों में से एक हैं? Is your name written down in the Lamb's Book of Life? Simple question. क्या आपका नाम उस मेमने की किताब में लिखा हुआ है? एक साधारण सा सवाल। Because he came to save us, but he came to save his people. और वो हमें बचाने के लिए तो आया, लेकिन वो अपने लोगों को बचाने के लिए आया है। Now we know he was born King of the Jews. आप जानते हैं कि वो यहूदियों का राजा बनकर इस दुनिया में आया, But he made a way for every single human being on this planet, everyone, to be saved. लेकिन उसने सारे इंसानों के लिए एक रास्ता तैयार कर दिया, जो कि उसमें विश्वास करेंगे वो बच जाएंगे। So the first question is, why is his name Jesus? He came to save us. सबसे पहला सवाल कि उसका नाम यीशु क्यों है? क्योंकि वो हमें बचाने के लिए इस दुनिया में आया। But not everybody's saved. लेकिन हर एक इंसान तो बचा हुआ नहीं है। Not everybody's going to heaven. Are you sure you're going to heaven? I've just got to challenge you with this. और मैं आज बार-बार आपको चुनौती देता हूँ, चैलेंज देता हूँ कि क्या वाकई में आप बचे हुए हैं? क्या आपने वाकई में खुदावंद यीशु मसीह को पाया हुआ है? क्या आपने मुक्ति को हासिल किया है? None of us knows what tomorrow will bring. हमें नहीं पता कि कल हमारे लिए कैसा होगा, क्या लेकर आएगा कल हमारे लिए। And the members of this church knows what happened to me on April the 25th. My heart stopped beating for 20 minutes. I was dead. और जो लोग इस कलीसिया के मेंबरान हैं वो जानते हैं कि 25 अप्रैल को मेरे साथ क्या हुआ था। 20 मिनट के लिए मेरा दिल जो है वो धड़कना बंद हो गया था। But I know where I'm going. लेकिन मुझे पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। Not because of anything I've done, but because they called his name Jesus. और ये नहीं कि मैंने क्या कर्म करे हैं या मैंने क्या अच्छा करा है, सिर्फ इसलिए कि मेरे खुदा ने, मेरे यीशु ने मेरे लिए क्या किया है और उसका नाम जो है वो हमारे जीवन में है। The wise men brought him gifts. और हम देखते हैं वो मजूसी जो है वो उसके लिए फर्क तरह के तोहफे लेकर आए। They brought him gold. वो उसके लिए सोना लेकर आए। That signifies royalty, kingship. और सोना जो है वो एक तरह से शाहीपन को जो है रॉयल्टी को दर्शाता है। They brought him frankincense. और वो उसके लिए मुर लेकर आए। That was used in the temple to make incense, worshiping God. और वो एक तरह से एक अगरबत्ती की तरह काम करता था, जो कि एक अच्छी सुगंध को देता था और वो खुदा के लिए थी। So this baby was a king और ये बच्चा जो है वो पहले ही राजा था, who came to be worshipped. और जो कि इस दुनिया में आया ताकि लोग उसकी वर्शिप कर सके। And they gave him myrrh, और इसी के साथ उसे लुबान भी दिया गया, which is a strange thing to give a baby, और जो कि एक बहुत ही अजीब चीज है जो कि किसी बच्चे को दी जा सकती है। because that's used to embalm the dead. और वो इसलिए इस्तेमाल की जाती है ताकि जो मरा हुआ इंसान है उसके शरीर पर जो है उसे लगाया जा सके। This baby, और ये छोटा सा बच्चा whose name is Jesus, जिसका नाम यीशु मसीह है, was born to die for you. और वो इसलिए पैदा हुआ कि वो आपके लिए मर जाए। How amazing is this? और ये कितनी खूबसूरत बात है। This is the real Christmas story. और यही असली क्रिसमस की कहानी है। It isn't about Marks and Spencer's. और ये नहीं कि हम कितनी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी दुकानों पर जाते हैं। They called his name Jesus because he came to save us from our sin. और उसे नाम दिया गया था यीशु, जो कि हमारे लिए इस दुनिया में आया ताकि हमारे पापों से हमें मुक्ति दे सके। The third question is this. और जो तीसरा सवाल है वो ये है, What does that mean? He came to save you from your sin. और इसका मतलब क्या है कि वो आपको आपके गुनाहों से बचाने के लिए आया। Romans chapter 6 says this, that the wages of sin is death. और हम देखते हैं रोमियो 6:23 में लिखा गया है कि पाप की मजदूरी जो है वो मृत्यु है। Are there any sinners in this meeting tonight? क्या यहाँ पर बैठे हुए कई लोग ऐसे हैं जो कि पापी हैं? I've got some news. All have sinned. You might not like me telling you this, but you're a sinner. और शायद हो सकता है कि आप नहीं चाहें कि मैं आपको ये कहूँ, लेकिन हम सब पापी गुनाहगार लोग हैं। None of us
have reached God's standard. None of us. All have sinned. हम में से कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो कि खुदावन के स्टैंडर्ड तक पहुंच चुका है, क्योंकि हम सब गुनाह से पैदा हुए गुनाहगार लोग हैं। And the wages of sin is death. और हमें वचन बताता है कि पाप की मजदूरी केवल मृत्यु है। Wouldn't it be terrible if that verse ended on a full stop? और सोचिएगा कि अगर ये आयत जो है वो यही खत्म हो जाती तो कैसा होता। But it's followed by a but. लेकिन उसके आगे अगर लिखा गया है, Thank God it is. और हम खुदावन का शुक्र करते हैं कि ऐसा But हुआ the है। gift of God is eternal life in Jesus Christ our Lord. और हम देखते हैं कि परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। Tomorrow we're going to be swapping gifts, giving gifts, receiving gifts, goodness knows what. और कल जो है वो हम एक दूसरे को गिफ्ट्स देंगे, लेंगे और बहुत से तोहफों को खोलेंगे। The greatest gift you'll ever receive is eternal life. और जो सबसे महंगा तोहफा आप खरीद सकते हैं वो सदा का जीवन है। They'll call his name Jesus. और उसका नाम केवल यीशु मसीह है। There's power in that name. और इस नाम में बहुत ताकत है। But there's a purpose in that name. लेकिन इस नाम के साथ एक मकसद भी जुड़ा हुआ He है। came to save you from your sin. वो आया इसलिए ताकि वो आपको आपके गुनाहों से बचा सके। He saves you from the penalty of sin. और वो आपको जो गुनाह की एक सजा है उससे बचाने के लिए आ गया इस दुनिया में। Because the wages of sin is death, so we all deserve to die. और हमने पढ़ा है कि वचन बताता है कि पाप की मजदूरी जो है वो मृत्यु है, और देखिएगा कि किस तरह से सजा जो है वो देनी यहाँ पर जरूरी थी। You see, when Jesus is your Savior, you're not waiting to die to receive eternal life. Right now, you are a child of God. और ऐसा नहीं कि यीशु मसीह की मुक्ति को पाने के लिए आपको मरने की जरूरत है, उसके बाद आपको मिल सके, कि आज इसी वक्त आपको ये मिल सकती है। He saves us from the power of sin. और वो हमें उस पाप की जो ताकत है उससे बचा लेता है। And one day, He'll save us from the presence of sin, because we'll spend all eternity with Him. Oh, praise God for that. और एक दिन ऐसा आएगा जो कि पाप की प्रेजेंस है उससे भी वो हमें बचा लेगा। What's the baby's name? उस बच्चे का नाम क्या है? Jesus. यीशु मसीह। Because He will save His people from their sin. क्योंकि वो अपने लोगों को जो है उसके गुनाहों से बचाने के लिए आ गया है। The Bible says salvation is found in no other name. और बाइबल हमें बताते हैं कि मुक्ति किसी और नाम में नहीं मिल सकती है। There is no other name under heaven whereby you must be saved. और कोई भी ऐसा नाम नहीं है इस धरती के नीचे जहां पर आपको बचाव जो है मिल सकता है, बच सकते हैं। Who does He save? वो किसे बचाता है? All those who are prepared to put their trust in Him. और वो हर एक उस इंसान को बचाने के लिए तैयार है जो कि अपना विश्वास जो है खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर करता है। I speak to some people who have been going to church all their lives, and I say, are you sure you're going to heaven? और कई लोग ऐसे हैं जो कि चर्च पूरी जिंदगी जाते हैं। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आपको पूरा यकीन है कि आप स्वर्ग जा रहे हैं? Sometimes they say, I hope so. और कई बार वो कहते हैं मैं उम्मीद करता हूँ। I don't hope so, I know. मैं उम्मीद नहीं करता, मुझे पता है कि मैंने स्वर्ग में जाना है। He saves us from our sin. और वो हमारे गुनाहों से हमें बचाता है। Would you be free from your burden of sin? There's power in the blood of Jesus. और क्या आज आप खुश नहीं है कि उस पाप की आज बर्डन से जो है आप आजाद हो सकते हैं यीशु मसीह के नाम से? If our greatest need had been information, God would have sent us an educator. और अगर हमारी सबसे बड़ी जरूरत जो है वो इंफॉर्मेशन ज्ञान होता तो खुदा बाप जो है वो हमारे लिए एक एजुकेटर भेज देता। If our greatest need had been technology, He would have sent us a scientist. और अगर हमारे पास सबसे बड़ी जरूरत आज होती कि टेक्नोलॉजी की तो वो एक साइंटिस्ट को भेज देता। If our greatest need had been money, He would have sent us an economist. और अगर हमारी सबसे बड़ी जरूरत पैसा होती तो वो किसी बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट को भेज देता। But our greatest need was forgiveness of our sin. लेकिन हमारे सबसे बड़ी जरूरत थी कि हमें पाप के लिए क्षमा चाहिए थी। So He sent us a Savior. इसीलिए उसने हमें एक मुक्तिदाता, एक तारनहारा भेज दिया। What's the baby's name? उस बच्चे का नाम क्या है? He's the King of the Jews. और वो यहूदियों का राजा है। His name is Emmanuel, because God is with us. उसका नाम इमैनुएल है क्योंकि खुदावंद हमारे साथ है। His name is Jesus. उसका नाम यीशु है। There's power in that name. इस नाम में बहुत ताकत है। His name is Jesus. उसका नाम यीशु है। There's purpose in that name. इस नाम में एक मकसद है। Because He came to save me and you from your sin.
क्योंकि वो मुझे और आपको आपके गुनाहों से बचाने के लिए इस दुनिया में आया।